हे यूट्यूब, थैंक्स फॉर विजिटिंग। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो CSR नेट का जो फॉर्म है वो तो आ चुका है। आप सभी ने जानते हो कि मई की 21 तक, अप टू मई 21 कैन डू और यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ CSR नेट जून 2024। सो आपके पास कुछ 50 डेज आई थिंक नियर अबाउट है, मत आई थिंक 2 मंथ्स भी नहीं है। So in these 50 days, how can you prepare or how can you boost your preparation up to a certain level so that you can crack your exam? So in this video, we discuss that topic. So I think those who are repeaters, those who are already given the exams one times or two times or three times or more, they should all obviously known about this thing and these situations and how to take or how to manage the times, like 2 months, like 1 month. I think they all know that. But those who are new, those who are giving your exam for the first time in your life, so this video is very helpful for you. And the repeaters, I think जो है तो वो तो मतलब सभी ने सब कुछ जानते ही है कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। So let's start the video for the beginners, for those who are giving the exams of CSR net for the first time. So first comes to the part A section or the general aptitude section. You all know that the CSR net questions paper divided into three parts: part A, part B, and part C. Part A comes from the general aptitude portion, part B and part C are from the core sections, that is our subject is mathematics, and our part B and part C questions comes from the mathematics part. And part B and part C, you all know that the questions marks are 3 marks and 4.75 marks, and there is negative marking in part B and there is no negative marking in part C. So first, if we first see that how can we prepare for part A, so you just practice the questions of previous year CSR net papers, and you can definitely complete or boost your preparations up to a certain level. So for the last time, for the last net exam, I only practice the previous years. In this from this experience, I am saying you that you can just practice the previous year's papers of part A and you definitely doing better in the part A. I last time I only prepare the previous year questions papers of CSR net part A, and I get a marks of 17 out of 30. Okay, just doing the previous year. So you can also definitely doing the previous years for part A, and you can definitely gain marks 10 to 12 or 15 or 20 marks, okay, in the part A वेरी इजीली। ओके, सो पार्ट ए के लिए आपको कुछ चिंता का मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप पार्ट डे एक एक पेपर उठाओ, एक एक CSR नेट का, ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन है वहाँ पर, 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपको एक प्रिपरेशन का लेवल मिल जाएगा पार्ट ए में। नाउ कम्स टू द कोर पार्ट और आवर सब्जेक्ट पार्ट। सो हाउ कैन यू प्रिपेयर? So see, I think there is 50 to 55 days or 60 days remaining the exam. So I think your syllabus must be completed till now. If you are going to give your exam for the first time, then also I'm assume that your syllabus, or you can complete, or you already complete the syllabus 70% or 80% or 60%. So there is no मतलब यहाँ पर कुछ बात नहीं है, ठीक है। जो सिलेबस आप किए वो तो ठीक है, ठीक है। सो ये जो 50 क्वेश्चन है, एंड इन द लास्ट एग्जाम्स व्हेन आई मेक ए वीडियो आफ्टर द रिजल्ट्स, सो समवन कमेंटेड मी दैट जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे। देखो, ठीक है, तो एक चीज़ ये आप कर लो कि पर डे के हिसाब से मैं भी वही बोलूँगा, यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन जितना अच्छा, कंसेप्ट की कमी किसी के पास नहीं है, ठीक है। मतलब कंसेप्ट सभी के पास 19-20 करके है, ठीक है। बट जो है वो है क्वेश्चंस करने का तरीका। हाँ, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही बोलूँगा कि जो लास्ट कुछ दिन बाकी है, जस्ट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस मोर और प्रीवियस ईयर और एनी अदर क्वेश्चंस। द लेवल शुड बी like CSR net, okay, because most of the practice questions, the level of the questions very differ from the original exam paper. So you can सी द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। देखो मतलब बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस पोस्टेड आता है, ठीक है। बट अब जेन्युइनली वो सब क्वेश्चन ही ट्राई करो जो CSR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
और सीएसआर नेट का जो लेवल तक क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा मेंबर्स होता है ग्रुप में जो इधर उधर का क्वेश्चंस भटक के आपको सीएसआर नेट का ग्रुप में डाल देता है, आपको वो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हो, बट होगा तो सही है, नहीं हुआ तो एक आपको कॉन्फिडेंस कभी ना कभी डाउन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब मत करो, ठीक है। आप सिर्फ सीएसआर नेट का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एंड कुछ सालों में, रिसेंट कुछ सालों में जो क्वेश्चंस का पेपर का जो ट्रेंडिंग हो रहा है क्वेश्चंस का, वो आप देखोगे तो थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चंस का लेवल जो जितना दिन जा रहा है उतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप ये ट्राई करो कि जितना क्वेश्चंस आप टू द एग्जाम, मतलब आप टू द ईयर्स आया है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में, तो उससे कुछ परसेंट ज़्यादा आपको खुद का प्रिपरेशन लेवल को बूस्ट करना है, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे, देखो कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, सिर्फ सॉल्व करो एंड रख दो, ऐसा नहीं करो। कुछ देखो आप क्वेश्चन, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लो कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो इधर उधर बुक से यहाँ पे कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो, एंड जो उस क्वेश्चंस का इधर उधर का कुछ क्वेश्चंस बन सकता है, या फिर जो ऑप्शन से थोड़ा बहुत घुमा के दे तो कैसा होगा, ये थोड़ा बहुत सोचो आप। नहीं तो जो रिसेंट ट्रेंडिंग में हो रहा है क्वेश्चंस का ना, एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, जिसका हो रहा है कुछ लाख है, कुछ का तो प्रिपरेशन लेवल है, लाख भी यहाँ पर फेवर करना चाहिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हर टाइम जाता हूँ मतलब एक अच्छा खासा प्रिपरेशन के साथ, बट क्या होता है मेरे को खुद को नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो यही होता है। एंड तो मैंने यही बोला, जो देखो आप एक मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड कर लो, ठीक है। सपोज आप 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चन पार्ट डे के हिसाब से, पार्ट बी एंड पार्ट सी का आप सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। मतलब टॉपिक कुछ भी हो, टॉपिक वो आप मतलब आपके हिसाब से उठाओ, एंड सपोज एक दिन में आप लीनियर की 25 क्वेश्चन और रियल की 25 क्वेश्चन, कि ये लीनियर की 20 क्वेश्चन, रियल का 20 क्वेश्चन एंड कुछ अप्लाइड पोर्शंस का 10 क्वेश्चन, ऐसा करके कर सकते हो। एंड लीनियर का सिर्फ 50 क्वेश्चन या फिर रियल का सिर्फ 50 क्वेश्चन एक दिन में, ऐसे भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए आप मतलब ऑनलाइन में मत घूमो, मतलब ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा मतलब कम घूमो, क्योंकि जो ग्रुप्स होता है, अब मैं जानता हूँ कि बहुत सब लोग ही जो कि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा ग्रुप होता है, एंड वहाँ पे आप ऐड भी रहते हो, मैं भी हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, कुछ का डाउट्स होता है, तो जेन्युइन क्वेश्चंस आप सिर्फ लेके ट्राई करने के लिए सोचो, ठीक है। जो सीएसआर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो कि 2 3 4 या फिर 5 ईयर का क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस लग जाएगा कि सीएसआर का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है या फिर नया क्वेश्चंस होता है कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप जब अंदाजा लग जाएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर का क्वेश्चंस में आप मत घूमो, ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चंस आप उठाओ जो क्वेश्चंस आपका लगता है कि ये क्वेश्चन सीएसआर का लेवल का हो सकता है, ठीक है। तो यही बोलना था कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे, एंड 2 महीने में जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस कर लो, एंड मॉक टेस्ट हो सके तो दे, तो ठीक है। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट में मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क होता है आपका प्रिपरेशन में, मतलब मॉक टेस्ट देने का एंड नहीं देने में, ठीक है। तो मतलब आप सब बहुत सारे लोग मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि सर बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा होगा फॉर सीएसआर नेट, तो मैं थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज देख रहा था, वो मैं एक दूसरा वीडियो में आप लोगों को बोल दूंगा, 1 2 दिन में ही वो वीडियो आ जाएगा। कि बेस्ट तो नहीं बोल सकता हूँ मैं कि क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखो एक एक जो मतलब पर्सन से पर्सन टू पर्सन बेस्ट कौन सा है, मतलब मेरा एक पर्सनल चॉइस है और आपका पर्सनल चॉइस नहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बेस्ट कौन सा है ये तो मत बोलो, मतलब देखो क्योंकि सबके सब जो इंस्टीट्यूट से मतलब कुछ सेम ही है, ठीक है, लेवल। दो वो मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यही था आज का, मतलब कैसे करोगे, एंड मोटिवेट तो रहना होगा। कैसे मतलब जो लोग पुराने हैं, ठीक है, उस लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत बोल दूँ कि मोटिवेट तो रहना होगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करूँ, मतलब मैं अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाऊँ, मतलब आ, अच्छे से नहीं, कुछ ही नहीं, मतलब अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। रोज सोच रहा हूँ होगा होगा करूँगा करूँगा, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। एंड आपका कुछ है मतलब थिंकिंग है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ जानने का है तो मेरा जितना है तो मैं उतना बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, मिलता है अगला वीडियो में।